competency of witness. It deals with who can appear in the court as witness. Testify means to give witness in the court. And testimony is also witness. When you are giving witness, it means it is your testimony. So, authors. General rule is that all persons are competent to come to the court and testify before the court. But there is some exception as well. The exception is exception 113. That is tender old age, extreme old age, disease, whether of mind or of body. थक जाऊंगी And an explanation is appended to this section 118, which says, anonymity is also eligible. Means he can also testify before court unless he is unable to comprehend the questions put to him. Or unable to give rational answers to them. Apart from this exception, there are also certain witnesses who are privileged, which we have already done from section 121 to 132, which include married couple, public officers, having sensitive information. Otherwise, general rule is that anybody can come to the court and testify as witness. So, tender age. We first take up tender age. Children. Is every child falling under this tender age? No. up to 14 Even 18 6 years or 7 years child may testify before the court. The only limitation, the only qualification is that he must be able to comprehend the question put to him. Comprehend means understand. yes sir. He must be able to understand the questions put to him and able to give rational answers. What do we mean by rational answers? If a question is put to you which has only two answers, answer can be yes or no. Yes, sir. But you are giving something else, you are talking of trees, you are talking of something else which has nothing to do with that question. Yes, sir. Either the answer can be yes or it can be no. Were you present at that moment? Have you seen this man? Have you seen that woman? Yes. Have you seen this happening? Have you seen this not happening? You are talking of
Yes, I was there. Yes, I was there. Apple tastes sweet and sometimes sweet sour. It sometimes tastes sour. So this question, this answer, your answer has nothing to do with that question. The answer should be either no or yes. But you are giving something else answer. You are being shown some person. As a child, you are being shown some person. Have you seen this person? There at the spot. So you are answering, he is my uncle. He is my uncle. This is not the answer. This is not the rational answer. Either you would say yes or you would say no. Getting me? So children of tender age, who can be termed as toddlers? They are below 6 or 7 years. Or sometimes even a child of 6 years cannot comprehend the question, cannot understand the question and cannot give a rational answer to it. So if court is satisfied that question which is being put to the child, he is able to understand that question and he is able to give rational answers to it. And all this is to be done in the court, not elsewhere. He cannot be witness in the police station or in the house. No, he is to bring into the court. Then he will be put question as a child. Then we have extreme old age. Due to extreme old age, our health begins to deteriorate. Many of our faculties do not work properly. Sometimes we do not listen properly, sometimes not see properly. Or sometimes we are not able to understand certain things properly. If the questions which are being put to an old age, very old age person, and he is not able to understand the question or give the rational answer to that question, then he cannot be a witness. His witness cannot be relied upon. Then we have persons who have disease, whether of body or of mind. Sometimes some diseases are such which do not render a person lunatic, which do not render a person insane, but they render him handicapped. They render him handicapped. It is that disease of body. Otherwise, some persons have diseases. We are also suffering from certain diseases. We may be suffering from certain diseases, but that disease will not make us lunatic. That disease will not Lunatic in nature. It will not deteriorate our thinking faculty. It will not deteriorate our seeing faculty. देखो किसी को आंखों की बीमारी हो सकती है, तो जैसे इसको आंखों की बीमारी हो गई या किसी को उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं है कि वो सवालों को जल्दी से समझ सके और उन सवालों का जवाब दे सके। इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल है। और कुछ पागल तो ऐसे भी होते हैं जिनको दौरे पड़ते हैं, पागलपन के दौरे। क्या होते हैं? एक होता है जो पागल ही है हमेशा के लिए। एक क्या होता है, कोई इंसान ऐसा होता है जो पागल हमेशा के लिए पागल होता है, लेकिन कोई पागल ऐसा होता है जिसे फिट्स आते हैं, वो उस दौर के टाइम में, उस टाइम में वो पागल होता है। तो अगर ऐसा कोई शख्स है, इसलिए यहाँ पे ये कहा lunatic is also eligible to testify. lunatic जो है, कुछ पागल जो होते हैं थोड़े से पागल होते हैं, ज्यादा पागल नहीं होते। उनसे आप सवाल पूछेंगे तो उस सवाल का सही जवाब दे सकेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ पागल जो बोलते हैं नींद पागल, आप तो नींद पागल जिनसे जिसे कुछ समझ नहीं कोई, इसीलिए पागल से पागल अगर यह कोई चीज कोई गलत हरकत अगर कोई कर लेता है कि जो उसको शोभा नहीं देते, तो हम क्या उससे बोलते हैं, तो पागल तो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, तो पागल तो नहीं है, ये पागल हो गया। तो उसका ल्यूनेटिक जो है इस सेक्शन 118 ने टोटली उसको ये इससे निकाला नहीं है, इनकॉम्पिटेंट नहीं किया है, बल्कि उससे भी कॉम्पिटेंट माना है अगर वो समझ सकता है क्वेश्चंस को, अगर उन सवालों को वो समझ सकता है और अगर वो उनके सही से जवाब दे सकता है, रैशनल जवाब दे सकता है। देखो एक होता है ट्रू आंसर, एक होता है ट्रू आंसर, दूसरा होता है रॉन्ग आंसर। ट्रू आंसर रॉन्ग आंसर की बात नहीं हो रही, रैशनल आंसर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रैशनल। क्योंकि
बहुत सारे गवाह जो होते हैं झूठे भी होते हैं। यस सर। बहुत सारे गवाह जो होते हैं वो झूठे भी हो सकते हैं। तो यानी इसका मतलब है कि उन्होंने जो जवाब दिया that was not true, but that has rationality to it. That has rationality, उसका कुछ ताल्लुक है उसके साथ। उनको कहा गया कि ये है, ये था नहीं, तो इसका कह दिया कि हाँ यही है। तो आंसर जो है आंसर गलत है, इसका आंसर हकीकत में क्या है, गलत है, लेकिन इरैशनल नहीं। क्या है, इरैशनल और रॉन्ग और ट्रू में फर्क है। क्या है, ट्रू आंसर और रैशनल आंसर में फर्क है। आ रही है बात समझ कि किसी को छुरा मारने से क्या होता है, अब बोलते हैं कि उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। इज इट अ रैशनल आंसर टू? अगर आप किसी को छुरा घूम देंगे उससे क्या होता है, आपको ये सवाल पूछा जाए। देखो जो वकील होते हैं ना, बहुत सारे सवाल पूछते हैं और बहुत सारे सवालों के लिए आप क्या बोलते हैं कि ये रेलेवेंट नहीं, क्या बोलते हैं, और वो साबित करते हैं कि वो रेलेवेंट है। और उसमें वो उनका नाम पूछते हैं, उनका प्रोफेशन पूछते हैं, उनको बहुत सारी चीजें। अच्छा आप मुझे बताइए कि अगर किसी को डंडा मारा जाए, अगर किसी को ऐसे चीज किया जाए, तो उसका क्या हाल हो सकता है? बोलेगा कि उसकी तो बीमारी ठीक हो जाएगी, और अगर किसी पर डंडा मारो ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज इरैशनल आंसर। अरे बात समझ? यस। इसी तरह उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपने इसको देखा, क्या आपने नहीं देखा, तो कुछ और बोल रहे हैं। तो जब वो इसका सही से रैशनल आंसर देंगे तो तब वो क्या होंगे, तब वो विटनेस मानेंगे। इसके कुछ केस लॉज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस टेंडर एज वाले के बारे में ये कहा कि जब आप इसकी गवाही देते हैं, बच्चे की गवाही जब आप देते हैं, बच्चे की गवाही में आपको बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? मोहतात। क्योंकि बच्चा जो है उसको कोई भी बहला फुसला कर कुछ भी बुलवा सकता है, उसको ट्यूटर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ट्यूटर का मतलब है कि जब आप आपको सिखाते हैं कि आपको वहां क्या बोलना है, दैट्स ट्यूटर। तो बच्चे को क्या किया जा सकता है, उसको ट्यूटर किया जा सकता है, उसको आसानी से बहला फुसला कर कुछ भी बुलवाया जा सकता है। इसलिए आपको वहां क्या करना पड़ेगा, बहुत एहतियात से काम लेना पड़ेगा। फिर है कि जो रेप के विक्टिम्स होते हैं, क्या होते हैं, रेप के विक्टिम्स, यानी जिनको प्रोसिक्यूट्रिक्स कहते हैं, कि क्या उसकी टेस्टिमनी जो है उसका क्या वैल्यू होता है। अगर किसी के साथ रेप हुआ है, अटेम्प्ट रेप हुआ है या रेप हुआ है, तो वो जो टेस्टिफाई करते हैं, वो जो उसका विटनेस देने के लिए आती है, उसका क्या वैल्यू है। क्या वो 118 जो है उसे रोकता है? नहीं। लेकिन इससे पहले जो है उसको उसकी टेस्टिमनी जो होती थी, उसका विटनेस जो होता था, उसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता, उसे माना जाता था शी इज एन अकम्प्लिस, शी इज एन अकम्प्लिस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा कि नहीं, वो अकम्प्लिस नहीं है। 1992 का एक केस है, मैं आपको केस का नाम बता देता हूं। सर अकॉम्प्लिस क्या होता है? अकॉम्प्लिस होता है जो जुर्म में आपका शरीक होता है। ओके, ठीक है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सीके जैन, AR 1990 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अकॉम्प्लिस नहीं है बल्कि वो विक्टिम है, और उसकी गवाही जो है सर फिर से बोलिए। वर्सेस सीके जैन, जी जैन सीके जैन 1992 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें कहा कि उसकी गवाही बिल्कुल वैसी है जैसे कि इंजर्ड होता है वायलेंस के केस में। दो लोगों का झगड़ा हुआ, किसी ने किसी को मारा, उसके बाद जो इंजर्ड हुआ वो जब गवाही देने के लिए आया कि फलानी लोगों ने मुझे मारा, तो उसकी विटनेस जिस तरह ली जाती है, उसके विटनेस का वैल्यू जैसा है वैसे ही इसका विटनेस का भी वैल्यू है। हाँ, लेकिन विटनेस जो लिए जाते हैं, इसमें ये बच्चे वाला केस जो मैंने कहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी कोलैबोरेशन भी होनी चाहिए। किसकी? बच्चे ने जब गवाही देगी उसकी अच्छे से कोलैबोरेशन होनी चाहिए, क्योंकि उसको कोई भी बहला फुसला सकता है। केस था दिगंबर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चे की गवाही दिगंबर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ यूनियन टेरिटरी। नया ही केस है ये, 2019 का शायद केस है। हाँ, 2019 सुप्रीम कोर्ट, वेरी रिसेंट केस, 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसके बगैर सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2017 का केस था, जिसमें एक बच्चे ने अपनी 12 साल का जो बच्चा था, उसने अपने बाप का कत्ल होते हुए देखा उस कमरे में जिसमें उसकी मां भी थी और उसका पैरामार भी था।
तो उन्होंने उसके पैरामर जो है उसने उसको मारा, तो उसके बाद बच्चे ने इसकी गवाही दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने दे रिलाइड ऑन इट, उन्होंने कहा कि हाँ एक बच्चा 12 साल का बच्चा जो है वो गवाही दे सकता है। इसके बगैर एक और केस था जिसमें 8वीं क्लास का बच्चा था, वो तकरीबन 13 इयर्स का होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजकल के जो 2002 का केस था, मैंने आज से 20 साल पहले वाला केस भी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8वीं जमात का बच्चा जो होता है वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो अगर कोई चीज देख ले तो उसको रिमेंबर कर सकता है, उसके बाद उसको नरेट भी कर सकता है, तो उसकी गवाही में उस पर रिलाई किया जा सकता है। दिस इज सेक्शन 118। देन वी हैव सेक्शन 119। सेक्शन 119 कहता है कि अगर कोई गवाह जुबान से गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि गवाही किससे देगा? जुबान से ही देगा। अगर वो जुबान से गवाही नहीं दे सकता तो वो लिखकर भी दे सकता है और इशारों से भी दे सकता है। लेकिन ये गवाही जो वो लिखकर देगा, जो वो इशारों से देगा, ये कोर्ट में देगा। कहाँ देगा? कोर्ट में। कोर्ट इसके लिए मदद भी ले सकती है किसकी? एक्सपर्ट्स की, स्पेशल एजुकेटर की। एक्सपर्ट्स गूंगे जो होते हैं उनकी जुबान नहीं होती, नहीं। लेकिन वो जब कोई चीज देखते हैं तो उसको याद भी करते हैं, उसको बता भी सकते हैं, लेकिन कैसे? इशारों में वो बता सकते हैं। लेकिन उन इशारों को सब लोग नहीं समझ सकते, उनके इशारों को सब लोग नहीं समझ सकते, कोड भी नहीं समझ सकता। इसलिए कोड उस वक्त उस मदद के लिए किसको ले सकता है? उसकी मदद में वो स्पेशल एजुकेटर को ले सकते हैं या फिर किसी इंटरप्रेटर को ले सकते हैं जो उन्हें बता सकता है कि इसका मतलब क्या है। आ रही है बात समझ में? इसे सेक्शन 118 एंड सेक्शन